Good morning, students. Welcome to science class. So, dear students, last time we had started with the chapter number 8, body movements. I hope you have completed this table 8.1 and table 8.2 in your notebook. So, today, students, we will continue with types of joints. I hope last time I had made this clear to you what are joints. Joints is a place in our body where two bones meet, which helps us to bend or move our body very conveniently. So the first joint, the type of joints which we are going to understand, it is ball and socket joints. Ball and socket joints, the name itself, it is telling that some part of it is just like a ball and it is fitted in a socket. You can see over here, you can see this diagram over here. You can see this ball like structure and this bowl like structure which forms a kind of a socket, and this ball like structure, it is fitted inside this, and very easily, very conveniently, it moves very easily. So this type of bone, it is present in our in our arms, near our shoulder, and near our hips. So let us read ball and socket joints. Activity 2. Roll a strip of paper into a cylinder. Make a small hole in an old rubber or plastic ball under supervision and push the paper cylinder into it as shown in the figure 8.2. You can also stick the cylinder on the ball. Put the ball in a small bowl. Does the ball rotate freely inside the ball? Does the paper cylinder also rotate? So students, यहाँ पे पूछा गया है कि ये अरेंजमेंट बनाने के बाद क्या ये बॉल जो है फ्रीली रोटेट करता है? Yes. Does the paper cylinder also rotate? Yes. Because this paper cylinder, it is attached to this ball, and this ball can easily move, easily rotate inside this bowl, a kind of a socket. Now imagine that the paper cylinder is your arm and the ball is its end. अब इसे imagine करिए कि ये जो सिलेंडर है ये आपकी आर्म है, आपकी बाजू है, और उस जो आर्म का एंड है वो बॉल की तरह है. The bowl is like the part of the shoulder to which your arm is joined. तो ये जो आपका शोल्डर का हिस्सा है जो एक सॉकेट की तरह फॉर्म करता है, आप अपने शोल्डर को टच करके फील कर सकते हो कि एक सॉकेट जैसा स्ट्रक्चर है, और ये जो आर्म है और इसका जो एंड है जो कि एक बॉल जैसा एंड है, ये उसके अंदर अटैच है और इस वजह से क्या है, ये फ्रीली रोटेट कर सकता है. The rounded end of one bone fits into the cavity hollow space of the other bone. Such a joint allows movement in all directions. Students, आपने ये ऑब्जर्व किया है कि आप अपनी आर्म को, अपनी बाजू को जो है 360 डिग्री में रोटेट कर सकते हो. Can you name another such joint you can think of, recollecting the body movements we tried at the beginning of this section? तो स्टूडेंट्स, आपके बॉडी में और भी अलग अलग तरह के जॉइंट्स हैं, उनके बारे में आपने सुना होगा और आगे हमने पढ़ना है. नेक्स्ट वन, इट इज़ पिविटल जॉइंट. नेक्स्ट वन है पिविटल जॉइंट. द जॉइंट वेयर आर नेक जॉइंट्स द हेड इज़ अ पिविटल जॉइंट. ये ऐसी जॉइंट हमारी बॉडी में है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये पिविटल जॉइंट है. आपके स्कल के साथ, आपके हेड के साथ जो आपका नेक कनेक्ट होता है, जिस पार्ट पे कनेक्ट होता है उसको हम कहते हैं, वो पार्ट को हम, वो जॉइंट को हम कहेंगे पिविटल जॉइंट. आइए इसके बारे में पढ़ते हैं.
Pivotal joint, the joint where our neck joins the head is a pivotal joint. It allows us to bend our head forward and backward. ये joint की वजह से आप अपने head को आगे की तरफ और backward की तरफ जो है bend कर सकते हो, झुका सकते हो and turn the head to our right or left. और आप जो है दाएं बाएं right left इसको जो है bend कर सकते हो, turn कर सकते हो. Try these movements. How are these movements different from those of our arm that can rotate a complete circle in its ball and socket joint? In a pivotal joint, a cylindrical bone rotates in a ring. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर है और ये जो सिलेंड्रिकल बोन है ये इसी में ही घूमती है और इसी की वजह से जो है ये लेफ़्ट राइट टर्न आप अपने हेड को कर सकते हो, आगे पीछे बेंड कर सकते हो. नेक्स्ट जो जॉइंट है स्टूडेंट्स वो है हिंज जॉइंट. हमने अंडरस्टैंड करना है हिंज जॉइंट. ओपन एंड क्लोज अ डोर अ फ्यू टाइम्स. ऑब्जर्व द हिंजेस ऑफ द डोर केयरफुली. दे अलाउ द डोर टू मूव बैक एंड फोर्थ. स्टूडेंट्स आप दिन में कई बार दरवाज़ा ओपन और क्लोज़ करते हो तो तुमने जो एक पार्ट होता है जिससे आपका जो डोर है वो डोर के फ्रेम के साथ में जुड़ा हुआ होता है और वो हिस्सा जिससे वो आगे पीछे बाहर और अंदर मूव करता है उस पार्ट को आप हिंजेस को ऑब्ज़र्व करो. ये हिंजेस की वजह से ही जो है डोर आगे पीछे बैक एंड फोर्थ मूव कर सकता है. अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए ये एक्टिविटी 3 हम अंडरस्टैंड करते हैं. लेट अस लुक एट द काइंड ऑफ मूवमेंट अलाउड बाय अ हिंज. तो हिंज एक पार्ट है जो 2 बोन्स को जॉइन करता है, एक जॉइंट है और यहाँ पे तो ये एक्टिविटी अंडरस्टैंड करते हैं. मेक अ सिलेंडर विथ अ कार्डबोर्ड और अ थिक चार्ट पेपर एज शोन. ये जो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है आप जो है कोई थिक कार्डबोर्ड लेके या किसी आप थिक पेपर से भी जो है ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बना सकते हो. अटैच अ स्मॉल पेंसिल टू द सिलेंडर बाय पियर्सिंग द सिलेंडर एट द सेंटर. आप एक पेंसिल लेके इसके अंदर जो है इंसर्ट कर सकते हो. आप जैसे पियर्स करके डाल देते हैं इस तरीके से आप इसके अंदर पुश कर दीजिए ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर में. Make a hollow half cylinder from cardboard such that the rolled up cylinder can fit inside it easily. The hollow half cylinder with the rolled up cylinder sitting inside it allows movement like a hinge. आपने क्या करना है, एक दूसरा सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बनाना है और एक तरफ से आपने हाफ साइज़ का ही बनाना है और एक साइड से आपने इसको इंसर्ट कर देना है. और जब आप उस सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर को मूव करोगे, थोड़ा पुश करोगे, फिर उसके बाद आप उसको वापस पुल कर लोगे, फिर पुश करोगे, आप देखोगे कि जो इनसाइड जो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर की मूवमेंट हो रही है उसकी वजह से ये जो बाहर की जो पेंसिल है वो भी आगे पीछे मूव कर रही है. तो आपको नज़र आएगा कि ये किस तरीके से बेंड करती है. जैसे आपकी आर्म आपकी बाजू बेंड करती है आगे पीछे, बस उसी तरीके से जो है ये मूवमेंट यहाँ पे एग्जिबिट होगी. Try to move the rolled up cylinder. How does it move? How is this movement different from what we saw with our constructed ball and socket joint? We saw this kind of movement at the elbow in activity 1. What we have constructed in figure 8.4 is different from a hinge, of course, but it illustrates the direction in which a hinge allows movement. The elbow has a hinge joint that allows only a back and forth movement. Can you think of more examples of such joints? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कहा गया है कि हमने 2-3 तरह की जो जॉइंट्स है उसको अंडरस्टैंड किया. सबसे पहले हमने बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को अंडरस्टैंड किया. इसके अंदर जो है ये आपने एग्जाम्पल यहाँ पे जो हमने कंसिडर करना है वो आर्म का कंसिडर करना है, लेग का कंसिडर करना है, जिसके जो एंड पे जो जॉइंट होती है वो एक बॉल और सॉकेट की तरह होती है. उसका जो एंड है वो बॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है और वो एक सॉकेट के अंदर बड़े इजीली रोटेट करता है. और दूसरा जो हमने जॉइंट अंडरस्टैंड किया है वो पिवटल जॉइंट है, जिसके अंदर बोन्स के मूवमेंट जो है लेफ़्ट राइट
और फ्रंट एंड बैकवर्ड्स की मूवमेंट होती है। और नेक्स्ट जो हमने अंडरस्टैंड किया हिंज जॉइंट, जिसके अंदर आगे बस आगे पीछे जैसे डोर ओपन और क्लोज होता है वैसी मूवमेंट होती है। अब नेक्स्ट हमने जो जॉइंट अंडरस्टैंड करना है वो फिक्स्ड जॉइंट्स है। तो नेम इटसेल्फ ही बता रहा है कि ये जो जॉइंट्स हैं, जो बोन्स हैं, ये आपस में जुड़े हुए हैं लेकिन ये इमूवेबल है, ये फिक्स जॉइंट्स हैं, ये मूव नहीं करते हैं। तो ये कहाँ पे हैं ये हमने अंडरस्टैंड करना है। सम जॉइंट्स बिटवीन बोन्स इन अवर हेड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज वी हैव डिस्कस सो फार। द बोन्स कैन नॉट मूव एट दीज जॉइंट्स, सच जॉइंट्स आर कॉल्ड फिक्स जॉइंट्स। जो हमारा स्कल है, जो हमारे हेड के अंदर जो स्कल है, हिंदी में खोपड़ी भी कहते हैं इसे, तो ये डिफरेंट बोन्स से बना हुआ है, बोन्स आपस में जुड़े हुए हैं लेकिन ये मूव नहीं करते। तो इस वजह से इस जॉइंट्स को जो है फिक्स जॉइंट्स कहा जाता है। व्हेन यू ओपन योर माउथ वाइड यू कैन मूव योर लोअर जॉ अवे फ्रॉम योर हेड, इजंट इट? ट्राई टू मूव योर अपर जॉ नाउ, आर यू एबल टू मूव इट? There is a joint between the upper jaw and the rest of the head which is a fixed joint. तो यहाँ पे आप माउथ को ओपन करके देखिए, आप अपने जॉस को जो है मूव करके देखिए, आप देखोगे, आप ऑब्जर्व करोगे कि आपका जो लोअर जॉ है, आपके जो माउथ का लोअर जॉ है ये वाला, ये मूव करता है, लेकिन ये जो अपर जॉ है ये बाकी स्कल के साथ में फिक्स्ड है। यहाँ का ये जो बोन का हिस्सा है ये बाकी स्कल के साथ फिक्स्ड है, और ये सारे आपस में जो बोन्स जुड़े हुए हैं जिस जॉइंट से, वो सारे जॉइंट्स को हम कहेंगे फिक्स्ड जॉइंट्स, बिकॉज वो मूव नहीं करते हैं, वो हिस्सा, वो जॉइंट जो है मूवमेंट नहीं एग्जिबिट करता, इस वजह से ये फिक्स्ड जॉइंट है। We discussed only some of the joints that connect parts of our body. What gives the different parts of the body their different shapes? अब हमने joints के बारे में बात किया कि ये जो joints हैं ये different bones को, हमारी body के जो different bones हैं उसको कनेक्ट करता है, उसको जोड़ता है। अब हमने अंडरस्टैंड करना है कि हमारी बॉडी को, जो ये डिफरेंट पार्ट्स से हमारी बॉडी बनी हुई है, डिफरेंट शेप्स जो एग्जिबिट करता है, एक्चुअली हमारी बॉडी का जो शेप है ये बोन्स से बना हुआ है और इसको हम स्केलेटन कहते हैं। चलिए इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। इफ़ यू वांटेड टू मेक अ डॉल, व्हाट विल यू मेक फर्स्ट? परहैप्स अ फ्रेम वर्क टू गिव द डॉल शेप बिफोर मेकिंग इट्स आउटर स्ट्रक्चर, इजंट इट? All the bones in our body also form a framework to give a shape to our body. अगर आप एक डॉल बनाना चाहते हो तो आप एक ढांचा, एक फ्रेमवर्क बनाएंगे ताकि आप उसको फाइनल आगे जाके शेप दे सकें, उसके डिफरेंट पार्ट्स को बना सकें। तो उसी तरीके से जो हमारी बॉडी है ये बोन्स के फ्रेमवर्क से, ढांचे से बनी हुई है, और वही हमारी बॉडी को जो है शेप देती है। दिस फ्रेमवर्क इज़ कॉल्ड द स्केलेटन। दिस फ्रेमवर्क इज़ कॉल्ड द स्केलेटन। आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, ये जो हमारे बॉडी का जो ह्यूमन स्केलेटन है उसकी पिक्चर है। बिल्कुल आप अंडरस्टैंड कर सकते हो यहाँ पे कितने डिफरेंट तरह के बोन्स हैं। कोई भी बोन जो है वो एक दूसरे से रिजेंबल नहीं करता। अगर आप देखो आर्म के बोन्स देखो, आप लेग्स के बोन्स देखो, इतने सारे बोन्स हैं। क्या तुम्हें पता है हमारी बॉडी में कितने बोन्स हैं? यस, हमारी बॉडी में 206, एक अडल्ट की बॉडी में 206 बोन्स होते हैं। लेकिन अगर आप एक बेबी की बात करो, एक इन्फेंट की बात करो, जो अभी काफ़ी छोटा बच्चा होता है, जब भी वो पैदा होता है उसके बॉडी में ज़्यादा बोन्स होते हैं, नियर अबाउट 305 बोन्स होते हैं, इसलिए उनकी बॉडी बड़ी फ्लेक्सिबल सी होती है। बट जैसे जैसे बच्चा अडल्टहुड की तरफ जाने लगता है तो उसकी बॉडी जो, उसकी जो बोन्स है बॉडी के अंदर, वो जुड़ जाती है, फ्यूज़ हो जाती है, और इसकी वजह से उनकी जो नंबर है वो कम हो जाते हैं, वो है 206।